Welcome, this is Fancy and my roll number is A1710. My presentation topic is War and Peace Novels Plot, which is written by Leo Tolstoy, a Russian novelist. So, the novel starts in 1805 in Russia, and Russia is at war with Napoleon Bonaparte's France. So, at the very beginning of the novel, there is a party going on which is held by Anna Pavlov at St. Petersburg, and this party marks 20 years old Pierre Viskov's first entrance into society. So, Pierre has studied abroad since he was a child and was born an illegitimate son. Anatoly, although he is a smart, but he fails to impress the party guests because he is too absent-minded and awkward. Prince Kragan tries to broker a marriage between his son Anatoly and Princess Maria Bolkonsky. Prince Andrei announces that he is joining the army as high-ranked officer. The Rostov's family holds a banquet which appeals to everyone. So we have seen that this is a novel basically about the war and the relationship between the persons, and there are five families which are basically mentioned in this novel. Everyone is impressed by young Natasha Rostov's beauty and grace. So Natasha is one of the beautiest women in this novel, and every person is really attracted to her because of his extra beauty. An 18-year-old Nikolai decided to join the Hussars in a fit of patriotism. So we have seen that Nikolai has a passion to join the army and to serve himself for his country. So he decided to serve his self for the country. Natasha is in love with Boris Dolbisky, and Nikolai is in love with his cousin Sonia. So, both couples promises to marry each other the man get back from the war. तो ये जो दोनों कपल्स होते हैं वे एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने ये फ़ैसला नहीं किया कि शादी कब करें, क्योंकि ये कहते हैं कि जब अभी एंगेजमेंट करते हैं लेकिन जब वॉर से वापस आएंगे तो फिर हम शादी करेंगे. Over the next few weeks, Pyrie has a great time carousing in St. Petersburg with Kragan's sons. This process ends when his father dies of a stroke. So जो पेयर्स होता है वो लेजिटिमेट सन होता है बेस्कोव का, और बेस्कोव की यहाँ पे डेथ हो जाती है. लेकिन जब पेयर्स उसकी अपने फादर की प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रगल करता है तो वो ना उसे काफ़ी दिक्कत पेश आती है टू गेट हिज फादर्स प्रॉपर्टी बैक, because he was a legitimate son of his father, and Pyrie eventually wins out and becomes one of the richest men in Russia. So finally he gets back his father's property. Princess Tartovsky manages to ingratiate herself both with Piers and the Kragan. Meanwhile, Prince Andrei go to war to the chagrins of the father's wife and sister. The next part of the book takes place on the battlefield in Austria. So, Andrei and Kutuzov must deal with their capricious lives, the Austrians, in addition to fighting with the France. So, अभी हम क्या देखते हैं कि जो बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलियट्स है वो स्टार्ट होने जा रही है, और एंड्रे और कुर्तस जो है वो क्या करते हैं कि वो एक अलाइज बनाते हैं उनका जो ना ऑस्ट्रियंस के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रियंस और रशियन मिलकर जो है ना फ्रांस में से जो बोनापार्ट्स होता है नेपोलियन, उसके साथ फाइट करने के लिए ये एक अलाइंस बनाते हैं. Nikolai Rostov's bond with a new friend, Captain Denisov, when a soldiers steals weapon from Denisov, Nikolai is terrified after fighting. So Nikolai, when he joins the army, and he has a great patience, but when he fights his first battle, he becomes disillusioned with war. So, and he was very terrified. Both Nikolai and Andrei realizes that war is not what they has hoped it would be.
तो निकोलाई और एंड्रिया जो हैं वो सोचते हैं कि वार एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो बड़े पैशन के साथ, बड़े इमोशन के साथ और वो ना अपने मुल्क के लिए बड़े पैट्रियटिज़म के साथ वो जाते हैं कि हम जंग में हिस्सा लेंगे, लेकिन जो ही वो उन सब चीज़ों को देखते हैं, ब्लड शेड को और डिस्ट्रक्शन को, तो वो डिसल्यूजन हो जाते हैं एंड दे फील दैट वार इज़ अ डिस्ट्रक्शन एंड वन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। पेयर्स मैरिज हेलेनी क्रैगन अंडर प्रेशर फ्राम पीटर्सबर्ग। सो हेलेनी जो है वो एक बड़ी खूबसूरत लड़की होती है और जो पेयर्स होता है ना वो इससे शादी कर लेता है। वो अपनी अभी उस विलिंग तो नहीं होता, लेकिन सोसाइटी से डरते हुए कि सोसाइटी क्या कहेगी, इस तरह की चीज़ें जो है ना सोसाइटी में, उस सोसाइटी में भी पाई जाती थी कि पीटर्सबर्ग के जो लोग थे वो उससे फोर्स करते थे कि अगर तुम्हारा कोई रिलेशन है इसके साथ तो तुम इसके साथ शादी भी करो। तो एनाटोली क्रैगन विजिट्स वैलिड हिल्स टू प्रपोज द प्रिंस मारिया। एंड्रिया's वाइफ यूज लाइज हैज़ अ सन एंड डाइज इन चाइल्ड बर्थ। तो जो एंड्रिया की वाइफ होती है वो चाइल्ड बर्थ में उसकी डेथ हो जाती है और फिर जो बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिएट्स है वो स्टार्ट हो जाती है और एंड्री उसमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और फिर वो एक फ्रेंच हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। निकोलाई डेवलप्स अ टेस्ट फॉर हीरोइज्म वाइल एंड्री इज़ बिकमिंग कम्प्लीटली डिसइल्यूजन विद वार। तो इन सब वाक़यात के बाद निकोलाई जो उसके अंदर एक हीरोइज़म का टेस्ट डेवलप होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू निकोलाई एंड्रयू बिकम्स कम्प्लीटली डिसइल्यूजन। तो वो वार से जो फेड अप हो जाता है, डिसइल्यूजन हो जाता है, इसलिए वो वार को पसंद नहीं करता। निकोलाई ब्रिंग्स कैप्टन डेनिसोव्स होम व्हेन दे आर ऑन लीव। डेनिसोव्स फॉल इन लव विद नताशा। तो निकोलाई की दोस्ती हो जाती है डेनिसोव से। डेनिसोव जो कैप्टन होता है वो निकोलाई उसको घर ले आता है और जब घर ले कर आता है तो वो उसकी सिस्टर नताशा से इसको प्यार हो जाता है और जब उसे कन्फेस करता है तो जो नताशा होती है वो उसे रिजेक्ट कर देती है उसके प्रपोज़ल को। देयर इज़ अ रूमर दैट हेलेनी बेस्कोव हैड अ फेयर विद डेलकोव। पेयर चैलेंज डेलकोव टू अ ड्यूल। तो फिर वहाँ पे क्या एक अफवाह उठती है कि हेलेनी का ना बेज़कोव के साथ डेलकोव के साथ एक चक्कर चल रहा है। तो पेयर्स क्या करता है, जब ये सारी बातें सुनता है तो वो उसे चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ एक ड्यूल करो। और ड्यूरिंग दैट ड्यूल व्हेन दे वर फाइटिंग एंड डोलोकोव वाज मच वाउंडेड बाय पेयर्स। तो वो क्या करता है, पेयर्स उसे काफ़ी सारे ज़ख्म देता है। हालांकि ना जो डोलोकोव होता है वो फिज़िकली तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन पेयर्स फिर भी उसे हरा देता है। तो निकोलाई गैम्बल्स विद डेलोकोव एंड लॉसेस मच ऑफ हिज फैमिलीज फॉर्चून। तो यहाँ पे क्या होता है कि निकोलाई जो है ना डोलोकोव के साथ एक फ़ाइट करता है, गैम्बलिंग करता है और उसके साथ ही जो ना उसकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इस तरह की चीज़ें। पेरिस ऑन द फ्री मैसन्स। तो पेयर जो है वो फ्री मैसन यानी कि एक रिलीजियस जमात को ज्वाइन कर लेता है। तो फिर ना उसके साथ ही इस तरह से वो ना दुनियावी चीज़ों से हटकर एक रिलीजियस टाइप पर्सन बन जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नावल की बाकी चीज़ें भी चलती हैं। पीस ट्रीटी भी साइन होती है वहाँ पे और फिर रशिया जो फिर वो फ्रांस के साथ वार पे होता है 1807 में। और यहाँ पे फिर अलेक्जेंडर फर्स्ट और नेपोलियन बोनापार्ट के साथ मिलकर ये पीस ट्रीटी साइन करते हैं। So we have seen that all these things are happening in this novel, and there is something going on, and some of the part of the novel will described by my next fellows. And here is end of my presentation. Thank you so much for listening me. Allah Hafiz.